صدر سے شہباز شریف کی ملاقات، ملکی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایم ایف کی شدید تحفظات، حکومت کا چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور۔ ٹی سی پی نے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا جاری ٹینڈر واپس لے لیا۔ عالمی ادارے نے معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تمام حکومتی وضاحتیں مسترد۔ ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی حکومت کو چینی کی قیمت کم کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر سربراہی چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس میں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور سینئر ممبران نے شرکت کی۔ ایسوسی ایشن نے یقین دہانی کروائی کہ چینی کی $165 ایکس مل قیمت یقینی بنائیں گے۔ 3 دن میں چینی کی قیمت میں کمی دکھائی دے گی۔ اگر درآمدات منصوبہ بندی کے مطابق اب آگے بڑھیں تو چینی کا سٹاک نومبر کے آغاز کے قریب میں پہنچ جائے گا، بالکل اس وقت جب گنے کی تازہ فصل کی خریداری شروع ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی چینی درآمد کرنے کے پھر سے مخالفت۔ سوشل میڈیا پیغام میں وضاحت کی، اس وقت چینی کی آمد سے گنے کی قیمتیں گر جائیں گی، پھر مجھ سے مت پوچھنا کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ مہنگی ہو گئی ہے، 220 روپے کلو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 500-1000 روپے کماتے ہیں، گھر کے 1500 روپے خرچ ہے۔ تنخواہیں آپ کی 50,000 روپے اور خرچہ آپ کا1,00,000 روپے، تو آپ کیا کرو گے؟ چینی اس وقت 190-200 روپے چل رہی ہے، یہی چینی 60 روپے پہ لیتے تھے۔ عوام کھائے گی کیا؟ یا کاروبار ہے؟ آپ کہہ رہے کو صرف چینی؟ دودھ دیکھ لو اور آئٹمیں دیکھ لو، ہر چیز مہنگی ہے، غریب آدمی کہاں سے کھائے گا؟ چینی کی ڈبل سینچری، کراچی کے عوام پھٹ پڑے، بولے آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملک میں گنے کی پیداوار کے باوجود بھی مافیا سرگرم ہے، جسے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے ساتھ ورچوئل اجلاس۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی، ٹیکس اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ۔ عالمی ادارے کی جانب سے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جاری ترجیحی ٹیرف پر مذاکرات حوصلہ افزا ہیں۔ وزیر اعظم سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں پر مبنی برادرانہ تعلقات پر گفتگو، دفاعی تعاون، باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دو طرفہ دفاعی معاہدے کے جلد اور مؤثر نفاذ پر اتفاق۔ شہباز شریف کا انڈونیشیا کے ساتھ سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم۔ چین سمیت کئی رکن ملکوں کے مابین تعاون کے نئے باب کھلنے کی امید۔ بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کا اہم اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی مؤثر نمائندگی کی۔ چینی صدر شی جن پنگ سے تاریخی ملاقات، علاقائی استحکام، باہمی اعتماد، اقتصادی ترقی اور یوریشیائی ہم آہنگی کے نئے امکانات پر گفتگو۔ دفتر خارجہ کے مطابق چینی صدر نے وفود کا خیر مقدم کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ SCO یوریشیا کے بڑے حصے کو جوڑتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قازقستان کے ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاک قازق دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا عزم۔ Strongly condemn the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Such illegal actions directed against SCO member states are unacceptable. اسرائیل کے ایران پر جارحیت اور امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا، غزہ میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔
वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर के साथ बैठक, जंग में फतह पर मुबारकबाद, सुप्रीम लीडर की क़यादत को खराज तहसीन पेश। मसूद पज़शिकियान ने जंग में पाकिस्तानी हिमायत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक साथ, दुश्मन कोई रखना नहीं डाल सकता। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की जनरल हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान फरीक़ैन ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन, इलाक़ाई सलामती की हरकियात और फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की तरफ तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाफरी सजामुद्दीन और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात में देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश, पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की हिदायत जारी, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाब होने तक मौखर की गई। आइनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर अज खुद रेफरेंस भेजने के मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी कोई तहरीरी शिकायत मौजूद नहीं। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस सीटों से मुताल्लिक़ फैसला जारी, नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। KP असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को एक इजाफी सीट मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की नशिस्त भी मिल गई। मखसूस खातून की नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद पर असातिज़ा छुपाने के इल्ज़ामात पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर, फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वज़ीर ने जमशेद दस्ती के केस का फैसला हायर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जी के 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएँ। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरेला फोर्स नहीं हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन के 90 रोज़ में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। पैगाम दिया कि अली अमीन को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने सवाल किया कि इस वक्त किस चीज़ पर मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद बताएँ कि किन निकात पर बातचीत होनी है। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की, कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए। मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। तहरीक शुरू होने से पहले ही PTI में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, वो माफ़ी मांगे वरना कार्रवाई होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस जाने से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। तहरीक चलाने नहीं, अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। तहरीक चलाना सियासी क़यादत का काम है। बानी के बेटे अगर चाहें तो तहरीक में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से दिए गए 90 रोज़ के अल्टीमेटम से कन्फ्यूजन पैदा हुआ। PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने भी 90 दिन की बहस को एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा 90 रोज़ की बात 5 अगस्त के इवेंट को शैडो करने के लिए हो रही है। 90 दिन की बात को तोड़ मरोड़ कर बयान किया जा रहा है। 90 दिन का 5 अगस्त की तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं। हैदराबाद के मुकामी फनकारा के नौजवान बेटे पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने नौजवान पर तशद्दुद के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान और मुतासरा नौजवान के दरमियान रंजिश चल रही थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम अरसलान सुमरो और अली बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने फनकारा के बेटे फरहान को हॉकी और पिस्तौल के बट से तशद्दुद का निशाना बनाया।
मुल्क भर में मानसून बारिशें। लाहौर, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बरसात से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। पाकपतन में छत गिरने से मासूम बच्चा जाँ बहक, बाप, बेटी और दीगर अफराद ज़ख्मी। सोबतपुर में तूफ़ानी बारिश से ग्रिड स्टेशन के खंभे उखड़ गए। छतें और दीवारें ज़मीन बोझ से। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों से अब तक 116 अफराद जान की बाजी हार चुके, 253 ज़ख्मी। 17 जुलाई तक मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई। चारों सूबों में हंगामी अलर्ट, शहरियों को एहतियात की हिदायत। सिंध में भी नए स्पेल की ताकतवर एंट्री। कई शहरों में बादल जम के बरसे। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। पोश इलाके भी मुतासिर। बारिश रुके 28 घंटे से ज़ायद गुजर गए मगर निकासी आब मुमकिन ना हो सकी। वज़ीर आला की हंगामी इक़दामात और फौरी रिलीफ की हिदायत। रुझान में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में तौसा और गिद्दू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर के मज़ीद 3 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में भी बारिशों का अलर्ट। आज से शहर कायद में बरसात का इम्कान। सक्खर बैराज से एक बार फिर लाशें मिलने का सिलसिला शुरू। गुज़श्ता रोज़ भी बैराज के मुख्तलिफ गेटों से 5 लावारिस लाशें मिली। सैलाब के दौरान बालाई इलाकों में डूबने वाले अफराद की लाशें बहती हुई सक्खर बैराज तक पहुँचती हैं और बैराज के गेटों में फंस जाती हैं। जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके वो उसको हम कैश करें। अवामी हिमायत से महरूम जमातें नंबर प्लेट्स जैसे गैर संजीदा मामलात पर सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। अवाम को गुमराह करने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI के बेटों को कानून के तहत सियासी मैदान में आने का हक हासिल है। कराची में तरक्याती मंसूबों के तहत सड़कों का वसी नेटवर्क तेज़ी से बिछाया जा रहा है। माली बहरान, तन्हाई और बेबसी की दर्दनाक दास्तान। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत। मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात। कमरे में खुश्क टब, फटे कपड़े और सिगरेट फिल्टर्स मिले। दोनों हाथ सीने से चिमटे हुए। व्हाट्सएप पर आखिरी पैगाम में हेलो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ की पुकार। पुलिस की तफ्तीश। जिम ट्रेनर, डिज़ाइनर और करीबी लोगों के बयानात कलमबंद। ईरान ने जोहरी अफजोदगी बंद करने की किसी भी शर्त पर मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। आयतुल्लाह खामेनाई के मुशीर अली विलायती का 2 टोक पैगाम। कहा कि अफजोदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुमकिना मुलाकात के वक्त और मकाम का अभी तक तयन नहीं हुआ। इसराइली बमबारी से गजा में इंसानी बहरान संगीन तर। मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ और बेघर कैंपों पर हमले जारी। खुराक, पानी, ईंधन और तिब्बी सहूलियात की शदीद क़िल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र का इमदाद की राह में रुकावटों पर इज़हार तशवीश। कतर में सीज़ फायर मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। हमास का नेतन्याहू पर मुज़ाकरात सबोताश करने का इल्ज़ाम। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एक बार फिर इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि अमरीकी आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझने लगे हैं कि नस्ल परस्त नेतन्याहू हुकूमत की हिमायत न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है बल्कि ये अमरीकी अवाम के टैक्स का भी संगीन गलत इस्तेमाल है। अमरीका को ऐसी हुकूमत को अरबों डॉलर फराहम नहीं करने चाहिए जो खाने के इंतज़ार में खड़े लोगों पर गोलियां बरसाए। नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में। अहम इत्तेहादी जमात ने साथ छोड़ दिया। अहम इत्तेहादी जमात यूनाइटेड तोरा जुडाज़म ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। UTJ के एक रुकन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके थे। अब जमात के बाकी 6 अरकान ने भी नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है। 120 रुकनी कैंसेट इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू को महज 1 नशिस्त की बरतरी हासिल। बरतानिया का पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए ई-वीज़ा का इजरा। पासपोर्ट में स्टिकर की शर्त ख़त्म। ई-वीज़ा ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस का सबूत होगा। बरताने जाने वाले तलबा और मुलाजमीन को पासपोर्ट पर आज से वीज़ा स्टिकर लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी।
अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब और बारिशों से हलाकतों की तादाद 131 हो गई। 97 अफराद ताहाल लापता हैं। मजीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग की वजह से इमदादी सरगर्मियाँ तात्तुल का शिकार भी हुई। मूसलाधार बारिशों के सबब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी हंगामी सूरत हाल नाफिस। कौमी क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ के लिए बांग्लादेश रवाना। सलमान अली आगा की क़यादत में 15 रुकनी टीम का पहला दस्ता बरास्ता दुबई बांग्लादेश रवाना हो गया। दौरा बांग्लादेश में कौमी टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सपोर्ट स्टाफ शामिल। दूसरा ग्रुप आज सुबह कराची से रवाना होगा। सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में होंगे। ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त, वेस्ट इंडीज सिर्फ 27 रन पर ढेर। 70 बरस की तारीख में दूसरा कम तरीन स्कोर। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी डे नाइट टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ को 176 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 27 रन बना पाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 225 और दूसरी में 121, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग में 143 और दूसरी इनिंग्स में 27 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 3-0 से जीत ली। और स्पंज बॉब को जहन्नुम से बचने की मुहिम दरपेश। सर्च फॉर स्क्वायर पैंट्स की झलकियाँ जारी। फिल्म रवां बरस 19 दिसंबर को पेश की जाएगी।